पल्लवी आप बताओ बच्चे क्या पढ़ा था कल। सर हमने पाइथन के बारे में पढ़ा था कि पाइथन एक केस सेंसिटिव होता है। हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती और है सर। वो अंडरस्टैंड करने मतलब इट इज इजी टू अंडरस्टैंड ओके। एंड दे हैव सिंटैक्स एंड रिया कैन यू थिंग। टेल मी दिस स्टेप हाउ टू इंस्टॉल डाउनलोड पाइथन। Yes, sir. In order to download Python, first of all, we have to open any of the web browser. And by opening the web browser, we had to type a web address that is www.python.org, and then the whole menu displays. The whole menu of the Python appears, on which we have to click on the downloads option, and there is the display of the bar in which it is shown about the downloading of the latest Python, and we can download it from there, and even we can install it on our mobile phones. And we can after downloading, there is installation of Python, which will take some time, and then after it's installing, we are able to use it on any of the. Oh, okay. Just you have tell me to install in the mobile phone. The Python's is is not directly installed in your phone. You have to installed. ठीक है. Write down Pyroid 3 from the Google Play Store. This is the better one ID to write a program in your phone. So, what is the name of ID you have to download from the Play Store? Pilot 3. Pyroid 3. Which one? Pyroid 3. Pyroid. Pyroid 3. So, this you can download from the Play Store and you can write a same program in your phone which you have written in the system using Python ID or notebook or Google Colab. So this is all about how to install download and install Python in your computers. Then what are the basic advantage of your Python, basic feature of Pythons. So and how we can work with the different type of IDs of Pythons to write a program. So this is all about your previous day lectures. So today we will start the Python fundamental. So in Python fundamental we will study the basic things, how what are the identifier, what are keywords, what are comments, and how to understand the basic keywords in the Pythons. So let us continue with today class. Screen is visible to you. Yes, sir. So this is your Python fundamentals. So in this chapter we will study about introductions, then Python character set, token and identifier, keywords, literals, delimiters, comma operators, then comment, single line comment and multi-line or continuation statement, then clarity and simplification of the of an expressions. So let us start with, in this chapter we will learn about the basic element
of Python that contains. So we will learn about the Python basic like character set, tokens, expressions, statements, simple input and output, etc. Now, yesterday we are talking about your English language. We have talk about your English language. Now, how many alphabets are there in English language? Any one of you? 26. 26. In the same way, today, here your alphabet is compared with programming's character set. Which one? Programming's character set. Program. Now see. Now character set define the valid characters. This is very important. Valid characters that can be used in source program or interpreted when program is running. Now, so what we can say, character set is define the valid character that can be used in the source program. अब जैसे हम बात करते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम कौन से वैलिड जो है अल्फ़ाबेट हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से यूज़ करते हैं बच्चे? फॉर एग्जांपल हाँ, कौन कौन से अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं बच्चे इंग्लिश के अंदर? अक्षय, यस सर। बच्चे जोर से बोलिए। ए बी सी एक्स वाई जेड। ए बी सी और एक्स वाई जेड। वेरी गुड। अब हम जो प्रोग्रामिंग है, अब प्रोग्रामिंग के अंदर हम कौन से कैरेक्टर सेट यूज़ करेंगे जो कि हमारा क्या है, जो सोर्स प्रोग्राम और जब हम प्रोग्राम को इंटरप्रेट करेंगे तो वो सक्सेसफुली हमारे पास रन हो जाए। द सोर्स कोड कैरेक्टर सेट इज द सेट ऑफ कैरेक्टर अवेलेबल फॉर सोर्स टेक्स्ट। अब सोर्स कोड मैंने आपको बताया था क्या होता है, बट इज सोर्स कोड सोर्स कोड के बारे में बताया था बच्चों आपको। सर जो यूजर लिखता है, जो कोड हम कहाँ पे किसी भी आईडी के अंदर हम लोग लिखेंगे वो क्या होंगे? सोर्स कोड। और जब हम उस प्रोग्राम को क्या करेंगे, कंपाइल और इंटरप्रेट करेंगे, तो जो हमारे सोर्स कोड हैं वो किसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड, वेरी गुड। तो अब सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं कि जो भी हम कैरेक्टर सेट यूज़ करेंगे वो अवेलेबल हो जाएंगे सोर्स टेक्स्ट के लिए। द एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट इज द सेट ऑफ कैरेक्टर अवेलेबल व्हेन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो जो हमारे सोर्स कोड थे वो किस में चेंज हो जाएंगे बच्चे? ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड में। पाइथन सपोर्ट्स यूनिकोड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। यूनिकोड की टर्म हमने कहाँ पढ़ी थी बच्चों? सर नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में। नंबर सिस्टम के अंदर तो कौन कौन से कोड पढ़े थे हमने वहां पे? एक हमने पढ़ा था अस्काई कोड, और दूसरा कौन सा था बच्चा? दूसरा कौन सा था? ASCII, इंडियन कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देन थर्ड वन योर थे हमारे पास यूनिकोड। दीज आर दी यूनिवर्सल कोड which can be used anywhere in the globe. Now Python has the following character set. Now write and now down. Now there are 26 Roman characters, small a to z. There are 26 Roman character,
upper Roman character capital A to Z, then 10 decimal digit 0 to 9, then 30 graphical characters, that is explanation sign, has, percentage, exponent, ampersand, asterisk, parenthesis, hyphen, or we can say dash, underscore, assignment, plus, tilde sign, single inverted comma, double inverted comma, colon, semicolon, interrogation, backslash, then this is your parallel line, front slash, curly braces, then your square braces, comma, then this is your dot, full stop, this less than, greater than, and dollar sign, or we can say the sign which are available on your numeric key as well as other in the keyboard's right hand side. So these are the 30 graphic character. So 5 white space characters, that is your space, horizontal backslash T, then form feeder backslash F, vertical tab, that is backslash B, and non-line character, that is backslash N. So now how much character set we have in a Python? So we can say 26 plus 26, 52, 52 plus 10, how much? 62, 62 plus 30, 92, 92 plus 5. So we can say how many characters are there in a Pythons? How much? 7. 97. 97. But you can see if we are talking about your English, we have your only 26. ठीक है, that is basic characters. Then all other things, these are comes under the category of your but we can say punctuations. ठीक है बच्चे, पंचुएशन होती है ना इंग्लिश के अंदर, तो वो भी हम लोग उसमें यूज करते हैं. तो पाइथन के अंदर आपको ये चीजें याद रखनी है. तो नेक्स्ट भी है, चलो पढ़ो. रिया, ये क्या लिखा हुआ है? Hooray, he explained. कौन पढ़ रहा है? हरे. Hooray, He explained you are the world champion. we are the world Explain. champions. अब देखो इसमें क्या क्या यूज हुआ बच्चे, ये इसको क्या पढ़ा था हमने, ये Inverted comma. डबल इनवर्टेड कॉमा, और ये इसके बीच में यूज हुआ, और ये कौन सा साइन था बच्चे? Exclamatory sign. एक्सप्लेनेशन साइंस. ये कौन सा है? Comma. तो देखिए हर एक साइन का अपना इसमें मीनिंग है. जैसे हरी मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन साइन है कि जल्दी, देन कॉमा, फिर थोड़ा सा हमने पॉज दिया, ही एक्सप्लेन्ड, फिर थोड़ा सा पॉज दिया, फिर इनवर्टेड कॉमा के अंदर बी आर दी वर्ल्ड चैंपियंस, फिर देन ये क्या यूज किया हमने, डॉट. डॉट को हम बोलेंगे फुल स्टॉप. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन द प्रोग्राम्स is also known as token और lexical unit. क्या बोलेंगे बच्चे? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट को क्या बोलेंगे? Token. टोकन. अब स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट क्या रहेगा? ये वन बच्चे, ये और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने यूज कर लिया, ये आपके पास एक क्या हो गया, यूनिट हो गया. ठीक है. अगर हम बात करते हैं, ये अगर बात करेंगे तो इसके अंदर देन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग इंग्लिश सेंटेंस, हमने पहले बात कर ली. पाइथन हैज फॉलोइंग टोकन्स. ठीक है. कीवर्ड्स, देन आइडेंटिफायर, इसको हम बोलेंगे नेम्स. ठीक है. देन लिटरल्स, आफ्टर दैट वी हैव ऑपरेटर, देन पंचुएटर. सो नाउ, सो टोकन एंड लिटरल्स. फर्स्ट वी हैव योर, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द बैकबोन ऑफ योर Python programming. Which one? Python keywords. Now keyword are the reserved word. Very important things. Reserved word, sometime we can use keyword as a reserved word. Same meaning we have. So each keyword has a specific meaning to the Python interpreter, and we can
use a keywords in our program only for the purpose for which it has been defined. As Python is case sensitive, this we have also studied in the feature of your Python yesterday. Python is case sensitive. Keywords must be written exactly as given in the tables. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके पास कुछ कीवर्ड या मेंशन किए हुए हैं, जब भी अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना है तो आपको ऐसे ही यूज़ करना है. तो आप इसको क्या बोलेंगे है, दिस इज़ द बेसिक, ठीक है, बेसिक कीवर्ड्स यूज इन पाइथन एंड दीज आर रिटन सेम एज रिटन इन द table. Otherwise we will find or got a error message that this is undefined variables. Okay, तो ये जो चीज़ है ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, जो रिजर्व वर्ड है. और दूसरी बात है कि ये जो रिजर्व वर्ड है इनका अपना ही काम है. जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो इनमें से जो भी आप वर्ड लिखेंगे जब पाइथन की आईडी के अंदर, तो जो भी रिजर्व वर्ड होगा उसका जो सिस्टम के अंदर इसका जो फॉन्ट डिफाइन होगा वो डिफरेंट हो जाएगा. इमीडिएट अलग से वो अलग से कलर के अंदर आपके डिस्प्ले होंगे. क्लियर हुआ बच्चे? ये यस सर. क्लियर हुआ? तो ये देखिए जैसे फॉल्स की बात करें, क्लास फाइनली इज, देखिए ये क्लास है. अगर हम बात करते हैं ये कैपिटल सी बड़ा कर दिया और LASS कर दिया, तो अब ये हमारे पास क्या हो रहा, कीवर्ड नहीं है. ठीक है, कीवर्ड आपके पास ये नहीं है. समझा ये बात? ये फॉर है, लेमडा है, ट्राई है, ट्रू, डेफ, फ्रॉम, नॉन लोकल, व्हाइल एंड डेल, ग्लोबल, नॉट, विद, एज, एलिफ. दिस इज इंपॉर्टेंट. एलिफ, देन इफ, और, ठीक है, यील्ड, असर्ट, एल्स, इंपोर्ट, पास, ब्रेक, एक्सेप्ट, इन एंड राइज. ठीक है, इसके अलावा जो भी अगर कोई और हो हमारे पास कीवर्ड होगा तो उसको हम साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे. तो ये क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? यस सर. यस सर. तो सिंपल आपने कीवर्ड्स को कैसे याद रखेंगे? क्या बोलेगा इसी कीवर्ड्स को? क्या है कीवर्ड्स हमारे पास? अक्षय, Yes, sir. क्या है बच्चे? Keywords are कीवर्ड्स क्या है reserved हमारे words. पास? So keywords are reserved words which have their own special meaning. Very good. You have just remember that these are the reserved word, or we can say predefined word, and cannot change by the users. So these has a specific या special meaning in the Python programmings. Then next we have, so Identifiers. again identifier. In programming language, identifier are names used to identify a variable, function और अदर एंटिटीज. ठीक है, आइडेंटिफायर को हम दूसरा नाम देते हैं नेम्ड. क्या बोलेंगे इसको बच्चे? नेम्ड. ठीक है, और इसको और भी बोलते हैं, साथ में आप इसको वेरिएबल के साथ भी, वेरिएबल भी इसको बोल लेंगे. ठीक है, तो ये जो आइडेंटिफायर हैं या जो वेरिएबल हैं या जो नेम्स हैं, इनका काम क्या करना है कि आपके प्रोग्राम के अंदर जो भी नाम यूज हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना है. क्या है? वेरिएबल्स. तो इसमें जो आपके पास आइडेंटिफायर हो सकते हैं, आइडेंटिफायर आपके पास वेरिएबल, ठीक है, फंक्शन और अदर एंटिटी इन द प्रोग्राम. नाउ द रूल फॉर नेमिंग एंड आइडेंटिफायर इन अ पाइथन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कि अब जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बेसिक रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है, कि अब मुझे ये बताएगी सानिया, दिस इज एन बुक, दिस इज एन बुक. हाँ सानिया, ये ठीक है जो मैंने बोला? रिपीट कर. दिस इज एन बुक,
No, sir. है? आसिमा, ये ठीक है बच्चे? No, sir. No, sir. नहीं समझाया? मैं कह रहा हूं कि मैं ये बात कर रहा हूं, ये No, sir. चलो ये लिखा, दिस इज ए बुक। ठीक है बच्चे? ठीक है ये? Yes, sir. Yes, sir. है? Yes, sir. Yes, sir. वो ठीक है जो मैंने ये स्क्रीन के ऊपर लिखा, Yes, sir. ये देखो, पढ़ो जरा ये। Sir. THS दिस लिखा मैंने, इज ए BOK बुक। ठीक है? No, Sir, sir. sir, गलत. No, sir. गलत थोड़ी, ठीक है ये। दिस No, TH sir. दिस हो गया, इज आगे ए BOK बुक हो गया। Sir, बुक की स्पेलिंग गलत हाँ नहीं है? हाँ Yes. हाँ, बोलो, वेरी गुड। कौन बता रहा है? सर, दिस दिव्यांश। की स्पेलिंग yes और बुक की होगी BOO. दिस की स्पेलिंग भी गलत है। नहीं, क्लियर नहीं हो पा रहा, फिर से बताओ एक बार। सर, बुक सब की बुक स्पेलिंग की स्पेलिंग गलत है। क्योंकि देखिए, दिस की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी हुई है, और ये दिस इज, ये देखो, ये एन बुक। ठीक है? तो पहली बात तो है, स्पेलिंग भी हमने गलत गलत दी हुई है। ठीक है? और दूसरा जो हमने क्या यूज़ किया बच्चे, वॉवल यूज़ किया, वो भी गलत यूज़ किया। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। Yes, sir. समझ रहे नहीं? यस सर। तो ये जो Yes, हम sir. प्रोग्रामिंग लिखेंगे, तो पहला जो रूल है कि आपने जो भी नेम लिखना है, तो आपके पास कौन कौन से रूल को आपने फॉलो करना है। ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम इंग्लिश के ग्रामर की बात करेंगे, तो ये सारे का सारा हमारे पास सेंटेंस ही क्या है, गलत है। ठीक है? तो कैसे गलत लिखेंगे? जैसे आपको इंग्लिश का पता है, तो आपने बता दिया ना कि गलत है। तो अब प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम जब नाम डिफाइन करेंगे, तो उस केस में हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे। ठीक है? ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। Yes, sir. आज कुछ आवाज़ नहीं आ रही है आपकी तरफ से बच्चों। अब देखिए, दिस इज योर फर्स्ट रोल।
The name should be begins with the an upper or lower case alphabet or an underscore sign. ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बच्चे कि जब भी आपको किसी वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ठीक है, तो वो या तो अपर केस से स्टार्ट होना चाहिए या लोअर केस के साथ स्टार्ट होना चाहिए या अंडर स्कोर साइन के साथ. दिस मे बी अलाउड बाय एन कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर A to Z, capital A to Z, 0 to 9 and underscore. So thus an identifier cannot start with the digits. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे. इसका मतलब क्या होगा बच्चे, कौन समझाएगा ये? कौन समझाएगा ये जो है सर कि नेम का भी नहीं होगा कि जैसे हम लोग ये इसमें से बच्चे आपके पास 11th के अंदर भी क्वेश्चन बनता है वेरिएबल आइडेंटिफायर से, और 12th के एग्जाम में भी आता है जो रिवीजन ऑफ पाइथन रहेगा ना, पाइथन टूर 1 और 2, पाइथन टूर 1 और 2 रहेगा 12th के अंदर. उसमें यहाँ से आता है कि आइडेंटिफाई द इनवैलिड और वैलिड आइडेंटिफायर गिवन इन द फॉलोइंग. ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और 4 ऑप्शन में कई बार आपको उसमें से वैलिड को आइडेंटिफाई करना है, कई बार इनवैलिड को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको 11th में भी आएगा कि वेरिएबल का नाम दिया होगा, लिस्ट दी होगी और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जब आपको इनवैलिड आइडेंटिफाई करना है तो पहली बात है कि आपको कहीं से डिजिट से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, या उसको स्पेशल सिंबल से. अब जब भी वेरिएबल का नाम आप यूज करेंगे तो स्पेशल सिंबल सिर्फ हमारे पास ये अंडरस्कोर ही होगा, जैसे कैसे हम बात करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास इसमें रहेगा इट कैन बी एनी लेंथ. ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चे? इट कैन बी एनी लेंथ. It can be any length. It can be any length. However, it is preferred to keep it short and meaningful. अब ये है कि वेरिएबल का नाम हमारे पास मीनिंगफुल होना चाहिए और जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा हम लिखें. अब एनी लेंथ का मतलब क्या होगा, इसकी लेंथ जो रहेगी वेरिएबल की वो 0 से लेके 2 5 कैरेक्टर तक रहेगी. मैक्सिमम इससे बड़ा वेरिएबल का नाम नहीं होता जो सिस्टम आपके पास रिकॉग्नाइज करेगा. लेकिन हमारे पास ये रहता है कि जितना छोटा और मीनिंगफुल हमारे पास नाम रहे उतना आइडेंटिफाई करना हमारे लिए इजी हो जाता है. देन इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड और रिजर्व वर्ड गिवन इन द टेबल्स. ठीक है, जितना हमारा टेबल के अंदर जो रिजर्व वर्ड दिए थे उसमें से कोई नहीं होना चाहिए बच्चे ये. ठीक है, मान लीजिए हो सकता है कि जब आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया तो उसमें एक आधा उसने रिजर्व वर्ड डाल दिया. ठीक है, अगर आपको रिजर्व वर्ड का पता नहीं होगा तो हो सकता है कि आप उसी को वेरिएबल का नाम दे दें. ठीक है, तो पहली बात है, दूसरी ये है, तीसरी है. देन नेक्स्ट भी है बी, ये इंपॉर्टेंट है, बी कैनॉट यूज स्पेशल सिंबल लाइक एक्सक्लेमेशन साइन, @ हैश, पॉन्ड, परसेंटेज एक्सेट्रा इन आइडेंटिफायर. देखिए कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं यूज करेंगे, सिर्फ आप स्पेशल सिंबल यही यूज कर पाएंगे. कौन सा बच्चे, कौन सा स्पेशल सिंबल? Underscore. ये दिस वन अंडरस्कोर, ये वाला, Yes. ये वाला ही आप यूज कर पाएंगे, इसके अलावा और कोई यूज नहीं कर सकते आप. ठीक है, तो ये आपके पास चार पॉइंट हैं यहाँ से यहाँ तक, ये आपके पास दिमाग में एकदम बैठने चाहिए. ठीक है, अगर इनमें से कोई भी आप जब वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, ठीक है, अगर आपने नहीं प्रॉपर्ली उसमें यूज़ कर पाए तो उस केस में हमारा जो है कि पहली एरर हमारे पास ये रह जाएगी, इनवैलिड आइडेंटिफायर. क्या एरर आ जाएगी बच्चे, क्या एरर आएगी? Invalid identifier. Valid identifier. ये कब आएगी? जब आप जो 4 रूल जो हमने पढ़े इनको जब आप वायलेट कर दोगे. वायलेट का मतलब क्या होगा कि इनको आप दिमाग में नहीं रखोगे तब. देन नेक्स्ट वी हैव
सम एग्जाम्पल ऑफ वैलिड आइडेंटिफायर। देखिए ये क्या बच्चे, नेम, ठीक है, ठीक है बच्चे, नेम Yes, sir. ये कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नंबर ऐसे हो रहा है, और आपके पास है ये देखिए देन ये नम 1। बच्चे लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, डिजिट यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले नहीं यूज करें। देखिए जैसे date_2_3 ये भी आपके पास वैलिड है, ठीक है, CHK वैलिड है हमारे पास। देन first_name, तो ये जब आपने किन्हीं दो वेरिएबल को एक साथ लिखना है तो उस केस में आपने अंडरस्कोर साइन यूज करेंगे, ठीक है। देन लास्ट नेम, अब मान लीजिए लास्ट नेम लिखना है तो इस केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा उसका पहला, दोनों जो वेरिएबल को आपने जब एक साथ लिखना है तो उस केस में आपके पास दोनों वेरिएबल के जो नाम है दैट शुड बी इन अ कैपिटल लेटर्स, ठीक है। देन लास्ट नेम, ठीक है, अदरवाइज वी कैन यूज last_name। देन नेम, ये बच्चे वैलिड है, क्या कहा था आपके पास, या तो आपके लोअर केस से स्टार्ट होगा या अपर केस के साथ होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव योर सम एग्जांपल ऑफ योर इनवैलिड। हाँ बच्चे ये क्यों इनवैलिड है, कौन बताएगा। ये पहले क्या लिखा हो बच्चे, ये डाटा फाइल। डाटा फाइल हमारे पास रिजर्व वर्ड है, क्या है बच्चे, ये क्या है, ये रिजर्व, आगे ब्रेक, अगेन रिजर्व वर्ड, 3 नंबर, इसमें कौन सा रोल जो है वो हमारा वायलेट हो रहा है, कौन सा रूल। आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। देखिए अगर हम इसकी बात करेंगे, डिजिट वैल्यू। ये देखिए 10 डिजिट कैनॉट बी स्टार्ट विद क्या डिजिट। अब देखिए उसके आगे जब हम बात करेंगे, इस केस में क्या बचे, ये दोनों के बीच में वाइट स्पेस है तो ये भी इनवैलिड आ गया। अब माई डॉट फाइल, इसके बीच में क्या है, डॉट है, डॉट स्पेशल सिंबल, ये भी इनवैलिड हो गया। आगे हैश हाउस अंडर डॉट स्पेस नंबर, तो क्यों, क्योंकि ये स्पेशल सिंबल के साथ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो वेरिएबल होंगे वो आपके इसी में होंगे और सिर्फ एक ही स्पेशल सिंबल यूज होगा, वो आपके पास कौन सा, अंडरस्कोर। और जो वेरिएबल होंगे वो हमेशा ही या तो कैपिटल अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे या अपर केस अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे। क्लियर हुआ बच्चे ये। Yes, sir. देन लिटल्स, ठीक है। अब लिटल्स आप समझेंगे, ऑप्शन रेफर्स टू अ कांस्टेंट वैल्यू आर डाटा आइटम दैट हैव फिक्स्ड वैल्यू। पाइथन अलाउ 7 काइंड ऑफ लिटल्स, इसमें है सिंगल लिटल्स और न्यूमेरिकल लिटल्स, देन बुलियन लिटल्स, उसके बाद है स्पेशल लिटल्स, नन, ठीक है। तो ये रहेंगे हमारे पास लिटल्स। अब जैसे स्ट्रिंग की बात करते हैं, न्यूमेरिक की बात करते हैं, बुलियन की बात करते हैं, स्पेशल लिटिल नन की बात करते हैं, ठीक है। जब भी हम स्ट्रिंग की बात करेंगे तो स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा, अल्फ़ाबेट इसमें इंक्लूड होंगे और हमेशा ही वो जो हम लिखेंगे वो सिंगल कोड्स या डबल कोड्स के अंदर वो वैल्यू हम लिखेंगे उसको, ठीक है। न्यूमेरिक में आपके पास कौन सा नंबर रहेंगे, 1 से लेके 0 से लेके कहाँ तक, 9 तक, और इसी में ही न्यूमेरिकल लिटल्स में आपके पास डेसिमल फ्रैक्शनल भी इसमें रहेंगे, ठीक है। बुलियन के अंदर कौन सा रहेंगे बच्चे, बुलियन, बुलियन पढ़ा था ना बच्चे हम लोगों ने, ट्रू एंड फॉल्स। वेरी गुड, उसमें ट्रू और फॉल्स रहेंगे, वेरी गुड। और इसके बाद नन स्पेशल हमारे पास एक लिटल्स है जो कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करता है, ठीक है, जो कोई भी वैल्यू आपके स्टोर नहीं करता है। इवन हम इसको नन का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर एम्प्टी वैल्यू रहेगी,
ठीक है, तो ये 4 टाइप के आपके पास लेटर्स हैं। ठीक है, स्ट्रिंग लेटर्स, न्यूमेरिक लेटर्स, बुलियन लेटर्स एंड स्पेशल लेटर्स नन। देन नेक्स्ट है लेटरल कलेक्शंस। ये देखिए, स्ट्रिंग लेटर्स आर सर स्ट्रिंग दिखाई दे रहा। लेटर्स इज a sequence of characters supported by कोड सिंगल और डबल और ट्रिपल कोड्स। ये कौन कौन से कोड्स बच्चे? सिंगल, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल डबल और कोट्स। ट्रिपल। आप समझना, देखिए सिंगल कोड का मतलब होगा ये, चलो एग्जाम्पल ही लिखे हो हमने। डबल कोड्स का मतलब होगा ये, इसके बीच में कोई भी चीज, मतलब कोई भी आपके पास अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है। और ये हमारे पास ट्रिपल कोड्स, ये तो एग्जाम्पल देखिए। सर आपकी आवाज कट जा रही है बीच में। अच्छा, तो हो सकता कि आज नेटवर्क का इशू हो गया। 1 मिनट बच्चे, मैं नेटवर्क देखता हूँ दूसरा यूज करके, 1 मिनट। हाँ बच्चे, अब ठीक है आवाज है? यस सर। अब देखेंगे, ये देखिए ए है सिंगल कोट्स के अंदर, इसको बोलेंगे कौन सा? कैरेक्टर लेटर्स। ये ए बी सी अगेंस्ट ये स्ट्रिंग। आगे ये देखेंगे तो ये आपके पास डबल कोट्स के अंदर। और ये देखिए 2 3 4 5 लिखा ना बच्चे, ये वैल्यू कौन सी है हमारे पास? कौन सी वैल्यू है ये? न्यूमेरिकल। कौन सी वैल्यू है? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल। लेकिन जब हम कोई भी चीज़ डबल इन्वर्टर्स कॉमा के अंदर लिख देंगे या ट्रिपल इन्वर्टर्स कॉमा के अंदर लिख लेंगे तो वो चेंज हो जाएगा हमारा किसके अंदर? स्ट्रिंग के अंदर। तो वो हमारा एज ए स्ट्रिंग कंसीडर होगा। अब ये देखेंगे 1-x-w-56, ठीक है। अगर इसको बोलेंगे तो ये जो हमारा स्ट्रिंग लेटर रहेगा, लेकिन ये क्या रहेगा? अल्फा न्यूमेरिक। कौन सा रहेगा बच्चे? अल्फा अल्फा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिक। अब अल्फा न्यूमेरिक क्यों बोलेंगे बच्चे इसको? देखिए सर क्योंकि इसमें अल्फाबेट भी हैं और न्यूमेरिकल स्पेशल सिंबल भी हैं आपके पास। देखिए ये इंटीजर आ गया, ये अल्फाबेट आ गया और ये स्पेशल सिंबल आ गया। मैं इन्वर्टर्स कॉमा के अंदर लिखता हूँ हैश, ठीक है, कितना? 55 और साथ में सी और इन्वर्टर्स कॉमा बंद कर दिया। तो ये कौन सा रहेगा बच्चे? कौन सा लेटर रहेगा ये? सर डबल। ये हमारे पास स्ट्रिंग होगा। कौन सा रहेगा? स्ट्रिंग। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू रहेगी, जैसे हम इसकी बात करें, ये न्यूमेरिकल वैल्यू थी, ये हमारे पास करेक्टर वैल्यू थी, ठीक है ना। ये कौन सी है? अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। देखिए स्पेशल सिंबल है, डिजिट हैं और करेक्टर हैं या अल्फाबेट हैं। देन पाइथन अलाउ अस टू नॉन अल्फाबेटिकली करेक्टर इन अ स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल बैकस्पेस, टैब, कैरेज एक्सेट्रा, ठीक है। देन स्ट्रिंग टाइप इन अ पाइथन अलाउ अस टू स्ट्रिंग। वन है स्ट्रिंग लाइन, देन सिंगल लाइन एंड सेकंड है हमारे पास मल्टी लाइन, ठीक है। 2 टाइप के होंगे, सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन, ठीक है। देन नेक्स्ट है स्ट्रिंग लेटर्स। स्ट्रिंग लेटर्स के अंदर क्या आएगा? द स्ट्रिंग दैट वर क्रिएटेड बाय इनक्लोजिंग टेक्स्ट इन अ सिंगल कोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रिंग लाइन, सिंगल लाइन जो स्ट्रिंग होंगे वो सिंगल लाइन के अंदर आप सिंगल इन्वर्टर्स के अंदर लिखेंगे और डबल कोट्स के अंदर, और नॉर्मली सिंगल लाइन स्ट्रिंग। सो दे मस्ट
टर्मिनेटेड इन वन लाइन, वो एक लाइन के अंदर टर्मिनेट हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप सिंगल लाइन या डबल इन्वर्टर्स कॉमा के अंदर लिखेंगे, ठीक है, वो हमेशा हमारे पास सिंगल लाइन स्ट्रिंग होंगे। और जब आपने किसको ट्रिपल लाइंस के अंदर यूज करेंगे, जैसे एग्जांपल है टेक्स्ट वन हेलो, ठीक है, ये देयर, और मल्टी लाइन के अंदर टू स्टोर सम टेक्स्ट स्प्रेड अक्रॉस द मल्टी लाइन एज वन स्ट्रिंग सिंगल लाइन, मल्टीपल स्टार्ट कैन बी क्रिएटेड इन टू वेज। देखिए पहले वाला है बाई एडिंग बैक स्लैश इन द एंड ऑफ नॉर्मल सिंगल कोट्स, बैक स्लैश ये बच्चे सिंबल आता है इसका बैक स्लैश, और डबल कोट स्ट्रिंग। देखिए एग्जांपल देखिए इसमें, जैसे ये लिखा क्या है कि अगर आपने मल्टीपल लाइन लिखना है तो सिंगल कोट के साथ स्टार्ट किए, फिर आपने बैक स्लैश लगाया, फिर आपने देखिए आगे फिर से आपने नमस्ते लिख दिया, फिर को आपने कॉमन कर दिया, तो ये आपका लाइन एक के ऊपर आ जाएगा और ये आपके पास लाइन टू के अंदर आ जाएगा। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा कि कैसे हमारे पास मल्टी लाइन बन रहा है। बाई टाइपिंग द टेक्स्ट इन ट्रिपल कोट्स, ठीक है, नो बैक स्लैश नीड्स टू एट द एंड ऑफ द लाइन। देखिए एंड ऑफ लाइन करने के लिए हमें, जब हम पाइथन के अंदर लिखेंगे तो जैसे हम डॉट लगाएंगे तो उस लाइन को वहाँ पे वो टर्मिनेट कर देगा। तो जो भी आप ट्रिपल लाइंस के अंदर लिखेंगे तो जहाँ जहाँ आपके पास डॉट यूज होगा उसके बाद ये आपने ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, मल्टी लाइन के अंदर आपके पास कन्वर्ट करके दिखा देगा। देखिए हेलो बैक स्लैश लिखा, नमस्ते, ठीक है, और आपने टर्मिनेट कर दिया, और उसके बाद लिखा कि हाउ आर यू जेंटलमैन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए ये ट्रिपल कोट्स थे, इसके अंदर ये हमने क्या किया, बैक स्लैश किया, तो ये ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे कर दिया, इसके बाद मैंने लगा दिया डॉट, ठीक है, और उसका हाउ आर यू जेंटलमैन। तो बच्चे इसमें कितनी लाइनें लिखी हम लोगों ने? सर 3 कितनी लाइन्स है बच्चे यहाँ पे? सर 3 लाइन्स। 3 लाइन्स, ठीक है। हेलो के बाद बैक स्लैश किया, फिर नमस्ते, फिर डॉट लगा दिया, तो ये एक लाइन खत्म हो गई, ठीक है, क्योंकि हेलो के बाद बैक स्लैश किया तो इसको नेक्स्ट लाइन में ले आएगा ये, ठीक है, और उसके बाद डॉट क्या कर देगा, वहीं पे इसको खत्म कर देगा, हाउ आर यू जेंटलमैन ये नेक्स्ट लाइन के अंदर आपके पास ये टेक्स्ट को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लिटल्स। चलो बच्चे बताओ मुझे कोई जो बात नहीं पता चले। समझ आया ये नहीं? यस सर। तो आपने इसको थॉरली पढ़ लेंगे, और जितना भी आपको पाइथन से क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो यहीं तक मैंने कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो अब आप पेपरों की तैयारी करिए और कोशिश करिए कि जैसे आप तैयार करेंगे इसको, अपना टॉपिक पढ़ेंगे, तो साथ के साथ कोशिश करिए कि पढ़ते टाइम ही आप उसके अंदर क्वेश्चन फ्रेम करने की आदत बनाइए, ठीक है, कि इसमें से पॉसिबल क्वेश्चन आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है बच्चे, ताकि कि आपको मान लीजिए कि जब आप यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आप उसको मतलब ईजिली उसको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। बाकी ठीक है, पढ़ाई भी करिए, एंजॉय भी करिए, ठीक है। और कब मिलते हैं स्कूल में? अब हम लोग कब मिलेंगे? आशिमा कब मिलेंगे स्कूल में अब? सर 21st। हाँ ठीक, तो 21 को, ठीक है। सो और बीच में जब पढ़ रहे हैं कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम, मुझे आप टेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। और अगर वैसे अगर बात करना चाहें तो शाम को 5 बजे के बाद बात कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपकी एक डाउट रहता है, ठीक है, हेजिटेट नहीं करना है,
आप टेक्स्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट नहीं चाहो अगर बात करना चाहते हैं तो बात भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। Yes, sir. ओके, Yes, Yes, sir. sir. लीव कर लो बच्चे क्लास को।